नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग। देशमुख बंगाल ब्रेकिंग के जरिए बंगाल चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर। बीजेपी का जिला उपाध्यक्ष प्रलय के पास में एक बड़ा दावा है। नंदीग्राम में जीत के लिए ममता बनर्जी ने फोन करके मदद मांगी। प्रलय पाल की तरफ से यह कहा गया और साथ ही अनजान नंबर से ममता बनर्जी का कॉल आया। बीजेपी नेता ने यह दावा किया है कि नंदीग्राम में अपनी हार को देखते हुए सीएम ममता बनर्जी ने फोन किया और जीत के लिए उनसे मदद मांगी। बीजेपी ने ट्वीट कर यह ऑडियो जारी किया है। वो ट्वीट भी आपके सामने रखेंगे जिसके जरिए ये पूरी बातचीत का ऑडियो बम यहां पर फूटा है। हालांकि टीएमसी का पलटवार भी इस पर सामने आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये पूरी तस्वीर सामने आ रही है, खासतौर से नंदीग्राम में जहां ममता बनर्जी की सीधी टक्कर शुभेंदु अधिकारी के साथ में है, ऐसे में क्या वाकई ममता बनर्जी की तरफ से मदद मांगी गई या इसके पीछे की कहानी कुछ और है, वो जरूर एक अलग जांच में सामने आ सकती है। लेकिन कथित ऑडियो टेप जिसे लेकर दावा किया जा रहा है, क्या कुछ इसमें है, आप भी सुनिए। তুমি তো অনেক ইয়াং ছেলে এবং অনেক কাজ করো, আমি জানি সবকিছু। তুমি একটু আমাদের সাহায্য করে দাও না, তুমি দেখবে কোনো অসুবিধা হবে না। কিন্তু দিদি, সেটা তো আমি যদি বলি শুনে, এটা আপনাকে দেখেই কিন্তু আমার পরিবার রাজনীতি করেছিল। আপনার সেই আদর্শ ভিত্তিতে, এবং আপনি যেদিন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন, সেদিনই মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে যেদিন মানে 11 সালে যেদিন রেজাল্ট ঘোষণা হয়, আমরা বুঝে নিয়েছিলাম যে আপনি ক্ষমতায় আসছেন। 5 জন ব্রাহ্মণ ডেকে হোম যজ্ঞ করে আমি কিন্তু গোটা মিটিং মিছিল করেছিলাম। কিন্তু খারাপ লাগে দিদি যে এত ত্যাগ করার পরও যখন প্রলয় পাল রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট পায় না, এর থেকে লজ্জার কিছু থাকতে পারে না। এটা কে করেছিল? এটা তুমি জানো? তোমাদের লোকাল যে লিডার ছিল, সে আমাদের নন্দীগ্রামে যেতে দিত না এবং সে আমাকে নন্দীগ্রামে ঢুকতে দিত না, সারা মেদিনীপুরে ঢুকতে দিত না। তাদের একটা জমিদারি চলতো, তুমি তো জানো সবই ভাই। আমি দিদি রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট পাবো না, এটা হতে পারে? আরে আমি আছি কি করতে? এগুলো তো, এটা তো যে করেছে সে অন্যায় করেছে। আমি তো মার খেয়েছি, আপনার মহাদেবের হাতে তো মার খেয়েছি আমি জানি, আমি সব জানি, আমি পরে শুনেছি। আমি তো আগে এত ডিটেলসে খবর নিতাম না, কিন্তু এখন যেহেতু আমি গেছি তাই আমি সবার খবর রাখছি বলেই খবর নিচ্ছি। আর দিদি, এখন আপনি যাই মনে করুন না কেন, বেরিয়ে এসেছি দল থেকে। আর দলের সঙ্গে যে দলটা করি, কোনো দলের সঙ্গে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবো না। আমি প্রাণ দিয়ে, জীবন দিয়ে যখন যে দল করি, আমার পরিবার করে সেটাই করি। আর আমাদের পরিবারের বিরুদ্ধে আঙুল তোলার মতন, 2 নম্বরই চুরির আঙুল তোলার মতন কারোর ক্ষমতা ছিল না, হবে না, ভবিষ্যতেও থাকবে না। সব ঠিক। তুমি এবার আমাকে একটা বলো, যাদের জন্য করছো তারা তো কোনোদিন বিজেপি করেনি না। আমি এখন যারা করছে তাদেরকে তুমি বিশ্বাস করো যে তারা অনেস্ট? তাদেরকে তুমি বিশ্বাস করো যে তারা মানুষের কাজ করে? অনেস্ট বলে মনে করি। যতদিন দল ঠিক পথে চলবে ততদিন দলের সঙ্গে থাকবো। আমাদের বিবেক জন্ম দিয়েছে, দল জন্ম দেয়নি তো। মানুষের ক্ষতি অন্যায় হবে, আমি কেন মানতে যাব? না, সেটাই তো আমি বলছি। তার মানে যে তোমাদের ওখানে লড়ছে সে কি তোমাদের কাছে সৎ? না, উনি ওই পরিবার দিদি, আমি যখন সিপিএম এর কাছে অত্যাচারিত হতাম তখন কিন্তু ওই পরিবার পাশে ছিল। আমি এই জায়গা থেকে ওই পরিবারকে সাপোর্ট করি দীর্ঘদিন। শিশির বাবুর সঙ্গে বাবার 40 বছরের সম্পর্ক। যেদিন সিপিএমরা অত্যাচারিত হতো তখন কিন্তু পাঠিয়ে দিতাম, ওরাই কিন্তু সেদিন সাহায্য করতো, আর কেউ ছিল না। সেদিন তো আমাদের সাথে ছিল বলে আমাদের হয়ে ওরা করতো। ঠিক আছে, আমরা সিপিএমের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াইটা করতাম। বলিস, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ফোন করার জন্য। মানে আপনি এত বড় নেতৃত্ব হওয়ার সঙ্গে সত্ত্বেও একজন সাধারণ কর্মীকে হিসেবে আমাকে ফোন করেছেন, এর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু দিদি আমাকে ক্ষমা করবে। তুই ভেবে দেখো। ঠিক আছে দিদি। तो ममता के कथित ऑडियो पर न्यूज नेशन से बोले दिलीप घोष। ममता बनर्जी जो चैलेंज करती थी अब भीख मांग रही है, ये दिलीप घोष की तरफ से कहा गया है। 10 साल में ममता बनर्जी ने आखिर काम क्यों नहीं किया, ये भी दिलीप घोष ने कहा। साथ ही ये भी कहा कि टूटा पांव दिखाकर ममता बनर्जी वोट मांग रही है। और ये कथित ऑडियो टेप जो इस वक्त आप सुन रहे थे, बीजेपी की तरफ से ट्वीट किया गया है। दिलीप दा, आज सुबह से जो देखने को मिला कि अलग अलग हिस्सों में पश्चिम मिदनापुर में जिस तरह का हिंसा देखने को मिला, केंद्रीय बल रहने के बावजूद भी, क्या कहेंगे? बीजेपी कर्मियों पर भी अटैक किया जा रहा है अलग अलग जगह। देखिए, यहाँ की जो परंपरा चली है, एक राजनीति में जो सत्ता में रहता है वो हिंसा करता है, डराने का प्रयास करता है। लोकसभा में इसका व्यतिक्रम नहीं, उस समय मर्डर भी हुआ है। पिछले 3-4 दिन से इस प्रकार लोगों को मारने का, धमकाने का, डराने का, यहाँ तक कि प्रेस वालों को, पुलिस को, सेंट्रल फोर्स को भी टारगेट किया गया है। उद्देश्य एक ही है, पब्लिक को डरा करके घर के अंदर बंद करके रखा जाए।
वो संभव नहीं है। सुबह से आप देख रहे हैं एक फेस्टिवल जैसा है, हजारों लोग रास्ता में उतर करके लाइन में खड़ा होकर के अपना चुनाव का अधिकार प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए इस बार वोट भी रिकॉर्ड परिमाण होगा, जीत भी रिकॉर्ड में होगा। तृणमूल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सेंट्रल फोर्स को बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, कहीं कहीं लेकर जाया जा रहा है सेंट्रल फोर्स को, बीजेपी के इशारे पे इस बार वोटिंग करवा रही है सेंट्रल फोर्स। कहीं नहीं है, सेंट्रल फोर्स यहाँ भी खड़ा है, सब जगह खड़े हैं, बूथ पर खड़े हैं, जो जिसको मदद चाहिए वहाँ कंप्लेन कर वो मदद कर रहे हैं। सेंट्रल फोर्स निष्पक्ष है, चुनाव कमीशन भी पूरा चुस्त दुरुस्त है, और लोग जिनको वोटिंग करना है जाके कर रहे हैं, जो हार रहे हैं वो कंप्लेन कर रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे, ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने आपके पूर्व मिदनापुर के एक सीनियर लीडर को फोन करके घर वापसी की बात कही है कि पार्टी में वापस आ जाओ तमलुक में, तो क्या कहेंगे? ममता बनर्जी जो चैलेंज करती थी, इंच में देखेंगे, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, आज वो आवेदन में आ गई हैं, भीख मांग रहे हैं, टूटा हुआ पैर दिखाकर महिलाओं को बोल रहे माताएं बहनें मुझे पैर टूट गया, मुझे वोट दे दीजिए। तो 10 साल अपने क्यों काम नहीं किया, लोग क्यों मुंह मोड़ लिए, सोचना चाहिए। ठीक है, उनकी पुरानी साथी है, उनको वोट कर सकते हैं, वो बुला सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो उत्तर दिया एक रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट मुझे नहीं मिला, इतने बड़े नेता है, तो सामान्य लोगों को क्या मिला होगा, लोग इसका जवाब चुनाव में देंगे इस पर। और एक खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, टीएमसी नेता एहतेशाम उल हक हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है एहतेशाम जी। सवाल यही है, जिस तरह से ये कथित ऑडियो टेप यहाँ पर सामने आया जो कि बीजेपी की तरफ से ट्वीट किया गया है, जिसमें नंदीग्राम में अपनी जीत के लिए मदद की मांग कर रही है ममता बनर्जी, क्या कुछ आपका पहला रिएक्शन? देखिए, सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये दिलीप बाबू जो बोले हैं ये फेक वीडियो है और इसमें कोई दम नहीं है, और ममता बनर्जी किसी से रिक्वेस्ट करने की कोई बात नहीं है। और ये जो बात हो रही है कि प्रलयपाल से दीदी हमारे मुख्यमंत्री उनसे गुहार लगा रहे कि हमें मदद कीजिए, ममता बनर्जी को मदद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ममता बनर्जी वहां जो है एक मतलब काफी वोट से वहां लीड करेगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मैं दीदी को हराऊंगा और 50,000 से ज्यादा वोट से हराऊंगा, तो मैं नहीं तो पार्टी छोड़ दूंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि उनको पार्टी छोड़ने पड़ेगी और हमारी नेत्री ममता बनर्जी एहतेशाम जी, जीत और हार तो 2 मई को साफ हो जाएगी, उस तस्वीर में आने में भी वक्त है, अभी तो पहले चरण का चुनाव है। आप सिर्फ इस सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, हम कथित ऑडियो टेप कह रहे हैं क्योंकि चैनल इस बात की पुष्टि नहीं करता कि इसके पीछे कितनी हकीकत है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा ऑडियो टेप जो कि ऑडियो बम के तौर पर सामने आ रहा है, उसे बीजेपी यूं ही कर देगी? मतलब बीजेपी के जिला अध्यक्ष प्रलयपाल यूं ही कर देंगे? बीजेपी कुछ भी कर सकती है, बीजेपी कहीं पर भी आ सकती है, अपने जीत को करने के लिए, बंगाल को काबिज करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन ये बीजेपी का जो है सपना कभी पूरा नहीं होगा। अच्छा, आप चाहते हैं कि इस ऑडियो टेप की पूरी जांच हो? नहीं, अगर आप कह रहे हैं, आप सिरे से यहाँ पर क्लीन चिट ममता बनर्जी को दे रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं आप उसी पार्टी से हैं, तो जाहिर सी बात है ये आपका हक भी बनता है कि उन्हें महफूज करें, लेकिन आप चाहेंगे इसकी जांच हो, ये आप चाहेंगे? एकदम बिल्कुल चाहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या बात है, जो भी निष्पक्ष होगा इसका जांच होगी, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो है ये फेक ये वीडियो है और इस तरह का जो एलिगेशन लगाया जा रहा है ये हमारे समझ में बाहर है। ठीक है, हमारे सहयोगी धीरेन्द्र कुंडी भी हमारे साथ मौजूद है। धीरेन्द्र, इस वक्त पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई ये सबसे अहम खबर है, जिस तरह से बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष प्रलयपाल ने ये ऑडियो टेप जो है सामने रखा है, उसमें सीधे तौर पर कह रहे हैं कि नंदीग्राम में जीत के लिए ममता बनर्जी मदद मांग रही है। टीएमसी नेता हमारे साथ में है, वो कह रहे हैं ये सरासर गलत है, ये फेक ऑडियो है। मैं अभी इस फेक ऑडियो पर भी बातचीत करने के लिए शुभेंदु खुद यहाँ, अगर मैं उनसे बात करूँ, प्रलयपाल को आप अच्छे से जानते हैं, वो वहाँ मंच पे भी थे, हम लोगों ने भी देखा। अब उनको फ़ोन करने की बात आई ममता ने, और उधर टीएमसी कह रही है कि नहीं ये इस तरह की बात नहीं है। क्या बात है, क्या चक्कर है? नहीं, बात तो कुछ है जरूर। प्रलय जी बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के, वो तो झूठ नहीं बोलेंगे और सब तो सुनाई दे रहा है। डर है मतलब आप जिस तरह से लड़ रहे हैं उससे ममता बनर्जी, हम नहीं, पार्टी मतलब मैं जानता हूँ पार्टी लड़ रही है, अधिकारी लड़ रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ता बहुत जोश में है, नंदीग्राम में वो लोग लड़ रहे हैं एकदम। तो क्या ये डर था ममता दीदी का कि प्रलयपाल जैसे जो डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट है? जी, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा जी, लेकिन ये है कि आप जीत रहे हैं वहाँ पे? जरूर, एकदम जीत रहे हैं, नंदीग्राम जीत रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, भारतीय जनता पार्टी।
तो देखिए मैं ये बता रहा हूँ कि किस तरह से प्रलय पाल उनकी पार्टी के हैं, सोमिंदु थे उनकी पार्टी के हैं और उनकी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। उनको हमने मंच पे भी देखा, लगातार सब जगह देखा और वो एक्टिव पार्ट वहाँ निभाते हैं। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल है, क्योंकि मैंने कल भी हम लोगों ने न्यूज नेशन ने दिखाया कि किस तरह से जो भीड़ कल उसमें दिखी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की सभा में, तो उसमें सबीना याद होगा हमने कहा था कि वो भीड़ ज्यादा डराएगी ममता बनर्जी को बामुकाबले जो जिस तरह से बीजेपी की सभाओं में भीड़ है, क्योंकि उस भीड़ में ज्यादातर लोग माइनॉरिटी वोट था जिसको अभी तक ये माना जा रहा था कि वो एक मुश्त ममता बनर्जी के साथ है। तो लिहाजा नंदीग्राम की लड़ाई का जरा सा भी संतुलन बिगड़ जाना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पूरे गणित को बिगाड़ सकता है। और ये क्या कुछ गणित आगे कहता है उस पर भी लगातार न्यूज नेशन की नजर बनी हुई है। टीएमसी नेता एहतेशाम उल हक भी हमारे साथ मौजूद है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि सीधे तौर पर न्यूज नेशन की टीवी पर कहा है कि जांच होनी चाहिए इस ऑडियो टेप की, जिसमें निकल कर सामने आएगा कि ये फेक है, ये सरासर झूठ है और सच सामने आना बेहद जरूरी भी है। एक छोटा सा ब्रेक जल्द हासिल होगा। और बंगाल की चुनावी लड़ाई तोड़ फोड़ पर आ गई है। जी हां, पूर्व मिदनापुर में शुभेंदु अधिकारी के भाई सोमेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमला किया गया, ड्राइवर से मारपीट तक की गई। तस्वीर हमने आपको लगातार दिखाई, एक बार फिर तस्वीर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से तोड़फोड़ यहां पर की गई, मारपीट यहां पर की गई। देखिए किस तरह से कैमरे में कुछ उपद्रवी भी यहां पर कैद हुए हैं। तोड़फोड़ यहां पर शुभेंदु अधिकारी के भाई सुमेंदु अधिकारी की गाड़ी पर की गई। पूरी तरह से देखिए आगे का जो हिस्सा है, पिछला हिस्सा है, गाड़ी के जो शीशे हैं चकनाचूर कर दिए गए। यहां पर बैटल ऑफ बंगाल से ये तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है, जहां पर एक तरफ चुनावी प्रक्रिया में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं तो दूसरी तरफ हिंसात्मक तस्वीर भी कुछ इस तरह से दिखाई दी। बंगाल के चुनाव में किस तरह से राजनीतिक हिंसा हमेशा से चर्चा का विषय रहती है और उसको लेकर तमाम सुरक्षा इंतजाम किए गए, तमाम केंद्रीय बलों की नियुक्ति हुई। इसके बावजूद भी आज जब पहले फेज़ का मतदान है उस वक्त कांथी में, ये कांथी के चुनाव के दौरान ये गाड़ी जो है इस समय WB32 AB 4453 इस गाड़ी पर जब ये यात्रा कर रहे थे, ये उनके काफिले में सोमेंदु जो शुभेंदु के भाई हैं उसके काफिले में थे, तो उनके साथ पहले ये देख लीजिए कि किस तरह की चोट यहाँ गाड़ी चलाने वाले को लगी है। उस गाड़ी को पूरी ये देखिए जो हाथों से लेकर तमाम जगह पर चोट की गई, इस तरह से चेहरे पर ये देखिए किस तरह से सूजा हुआ ये चेहरा है जहाँ खून गए हैं। दादा क्या हुआ था? हुआ था ये अपना माने प्रार्थी का एजेंट आया था यहाँ इलेक्शन में, एजेंट को बैठने नहीं दिया, मार कर उठा दिया। ये लोग आया था, एक सिक्योरिटी लोग के भीतर चला गया और हम साथ साथ गाड़ी घुमा कर जैसे गाड़ी का पास लॉक करके रहता है ऐसा रहा है। ये लोग 25-30 आदमी, यहाँ का ब्लॉक प्रेसिडेंट राम गोविंद दास, उसका नेतृत्व से 25-30 आदमी आके गेट में हमला किया। वो लोग तो भीतर है, कुछ नहीं है। उसका बाद जब गाड़ी देखने मिल गया, बोलो उसको गाड़ी तोड़ो, तो लट्ठी पाथर फ्लैग लेके गाड़ी तोड़ने लगा। कि ये पूरा का पूरा ये टूटा हुआ शीशा पूरा इस गाड़ी के अंदर जब बैठे थे तो इस पूरी गाड़ी में पूरा नुकसान पहुंचाया गया। और इस समय हालांकि यहाँ सुरक्षा बल की मौजूदगी थी, ये तमाम चीज़ें थी। उस गाड़ी को किस तरह से तोड़ा गया, इस पूरी गाड़ी को तोड़ा गया है पीछे की तरफ से। इस समय हम लोग देखें, अच्छा इस पर दादा कोई कार्रवाई की कोई बात नहीं हुई अभी तक क्या? इलेक्शन कमीशन कार्रवाई जरूर करेगी, अगर नहीं करेगी तो आप आगे देखेंगे जरूर जरूर। तो ये इसमें वो टीएमसी के साथ लोग थे जितने लोग दिख रहे थे? ब्लॉक प्रेसिडेंट तृणमूल कांग्रेस के और यहाँ के जो प्रधान है नोमिता दास, उनके हस्बैंड राम गोविंद दास, वो ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के प्रेसिडेंट है यहाँ कोंटाईवन ब्लॉक का। अच्छा, उस दौरान वो नारे और मारपीट वही उसी के नेतृत्व में सारे घटनाएं यहाँ पर घटी है। अच्छा, और पुलिस थी तब भी ये नहीं पाया? पुलिस सेंट्रल फोर्स अंदर थी और वो लोग पूरा निष्क्रिय थे और स्टेट पुलिस की तो आप बात छोड़िए। अच्छा, कह रहे थे कि इस बार सुरक्षा दी जाएगी और किसी भी विपक्षी पार्टी को किसी का। मैं आशावादी हूँ, मैं निराशावादी नहीं हूँ। ये छिटपुट, ये तो बंगाल के लिए बहुत ही छोटा घटना है। बंगाल में बहुत हिंसा और भी ज़्यादा होने का आशंका थी, लेकिन जो हुआ है छिटपुटी मैं मानूंगा। और वोट बहुत अच्छा हो रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है और भाजपा जीत रही है सब जगह। तो तमाम इलाकों में घूम ही रहे हैं तो भाजपा जीत रही है, बिल्कुल जीत रही है, एकदम जीत रही है। ये भाजपा जीत रही है। इसमें देखा कि गाड़ी का किस तरह से छुटपुट घटना है, लेकिन ये काफ़ी बड़ी घटना हो गई थी। अगर इसमें जिस तरह से ड्राइवर को मारा गया और उस वक्त अगर मिल जाते तो उस समय क्या हाल हो सकता था, ये आपको इस गाड़ी की हालात से पता चल रहा है। ये कांथी की वो घटना है जिसमें अभी तक शांतिपूर्ण चल रहे मतदान का ये हाल आलम है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, कांथी।
और आइए अब 3 तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। ये 3 तस्वीरें आप देखिए किस तरह से कार में तोड़फोड़ की गई, किस तरह से सीपीएम कैंडिडेट पर हमला किया गया और सीधे तौर पर टीएमसी पर आरोप लगाया जा रहा है कि इस पूरी हिंसात्मक तस्वीर के पीछे टीएमसी का हाथ है। आप समझ सकते हैं चुनाव आयोग ने केंद्रीय बलों की लगभग 684 कंपनी तैनात की है जो 10,288 मतदान केंद्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है। इसके अलावा कई जरूरी यानी कि महत्वपूर्ण स्थान है जहां पर राज्य की पुलिस भी तैनात की गई है, लेकिन फिर भी हिंसात्मक तस्वीर जो है वो लगातार यहां से सामने आ रही है। और पश्चिम मेदिनीपुर की तरफ रुख करें तो यहां के केशियारी में बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिला है। मंगल सोरेन नाम के बीजेपी कार्यकर्ता का जिक्र कर रहे हैं जिसका शव मिला है। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ता की हत्या का आरोप लगाया है कि हत्या की गई है मंगल सोरेन की। ये बीजेपी के बाकी कार्यकर्ता यहां पर कह रहे हैं। तो कहीं बमबाजी, कहीं बम से हमला, कहीं गाड़ी में तोड़फोड़ की जा रही है, कहीं मारपीट हो रही है। टीएमसी खुद चुनाव आयोग के पास शिकायत करने गई है कि धांधली चुनावी प्रक्रिया में हो रही है। बीजेपी कह रही है कि हार का डर सता रहा है। लेकिन इस बीच ये जो तस्वीरें सामने आ रही है वो ये बताने के लिए काफी है कि पश्चिम बंगाल की सियासत में खूनी संघर्ष अब तक थमने का नाम नहीं लिया, जबकि पहला चरण है ये चुनाव का। 2 मई को बंगाल में तृणमूल की सरकार बनाएगी। बंगाल की बेटी बंगाल के गद्दार को नंदीग्राम में हराएगी। मोदी शाह और उनके टूरिस्ट गैंग के अन्य सदस्यों के साथ हर संस्था को नष्ट करने की कोशिश वो लोग करते रहेंगे। ভারত বিরোধী আমাদের লোকরা প্রতিরোধ করেছে। রাত্রে পুরো এলাকা দখলে ছিল যেখানে করেছে ভোটাররা বেরিয়ে প্রতিবাদ করেছে। সকাল থেকে শান্তিপূর্ণভাবেই ভোট হচ্ছে। আমাদের স্পেসিফিক কমপ্লেন দক্ষিণগাছি এলাকার দুলালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের 2টো মাজনা মক্তব বুথে আছে। तो आज चुनावी दिन है, पहले चरण की वोटिंग असम और पश्चिम बंगाल में लगातार हो रही है। महा कवरेज आगे भी लगातार इसी तरह जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।